والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ مل کے حضور کے دربار گہربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ تو بیماروں کی طرح درود پاک پڑھا ہے، تندرست اور صحت مند لوگوں کی طرح عاشقوں کی طرح درود پاک پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دوستو، میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد عربی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا روز ہوگا، ماں بیٹی کو نہ پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، ماں سکی ایک نیکی دینے کے لیے اس دن تیار نہ ہوگی۔ اس وقت سرکار فرماتے ہیں اس پر فتن اور پر خطر ٹائم کے اوپر اس شخص کو میرا قرب نصیب ہوگا، وہ بڑا خوش نصیب شخص ہوگا۔ کرتا کیا ہوگا؟ اس شخص کو میرا قرب نصیب ہوگا، رفاقت مصطفیٰ نصیب ہوگی۔ جب ماں بیٹی سے مانگے گی، باپ بیٹے سے مانگے گا، ماں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگی، اس وقت اس کو میری رفاقت نصیب ہوگی جو دنیا میں مجھ محمد عربی پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا۔ بہترین دعا سورہ فاتحہ، بہترین وظیفہ درود پاک۔ اور پریاں پروں کے ساتھ سجتی ہیں۔ کیوں جی؟ پر کاٹ دیا جائے تو پری پری نہیں، پریاں پروں کے ساتھ سجتی ہیں، ماں اولاد کے ساتھ سجتی ہے، زمین سبزے کے ساتھ سجتی ہے، آسمان ستاروں کے ساتھ سجتا ہے، اور مومن جو ہے وہ اعمال صالحہ ذکر کے ساتھ سجتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ، غفلت اور معصیت کے ساتھ مومن نہیں سجتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں ذرا بتاؤ، ایک باغ، اس میں صرف ایک درخت سرسبز و شاداب ہے، باقی سارا باغ سوکھا ہوا ہے، سارے درخت سوکھے ہوئے، تمہیں بھلا کون سا لگے گا؟ اچھا کون سا لگے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ جو سرسبز و شاداب ہے۔ فرمایا اسی طرح پھر یاد رکھ لو کہ غافلوں کے اندر، گناہگاروں کے اندر اللہ کو نیکوکار اور ذاکر بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔
गुनाहगारों के अंदर और गाफिलों के अंदर नेकोकार और ज़ाकिर जिक्र करने वाला बंदा बड़ा प्यारा लगता है। अल्लाह को प्यारा लगना चाहते हैं तो फिर सोने रब का जिक्र भी करो और नेक अमाल भी करते चले जाओ और गफलत और गुनाह को छोड़ते चले जाओ। मेरे दोस्तों, चूंकि आज जुमा भी है तो आपसे 20 से 25 मिनट तक गुफ्तगू करनी है और वो गुफ्तगू खसूसन अहले तरीक़त के लिए। वैसे ये जो हमारे चिश्ती साहब ने कलाम पढ़ा है ना, इस कलाम की अगर वजाहत की जाए तो वो भी तरीक़त ही की तालीमात पे मबनी होगी। तो मैं अजमालन उसकी गहराई में तो नहीं जाऊंगा। कह रहे थे कि जिक्र जब करते हैं तो गम दूर हो जाते हैं। आप कोई साहिब अकल या दुनियादार उठ के कह सकता है कि जी वो नेक अमाल भी करता है, जिक्र भी करता है, अल्लाह के महबूब बंदों के पास भी बैठता है, लेकिन फिर भी बेचारा रज के गरीब है, रज के बीमार है और जनाब अली उसके यहाँ औलाद भी नहीं है। आप तो कह रहे हैं जनाब अली दंदना के खुदा के घर के अंदर के गम सारे ख़त्म हो जाते हैं जिक्र करने से, अल्लाह के महबूब बंदों के पास बैठने से। मेरे दोस्तों, इसकी एक गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ कि गम की डेफिनेशन आप समझे ही नहीं है। गम की और जनाब खुशी की डेफिनेशन अगर आप समझ जाते ना तो ऑब्जेक्शन ना करते। और मैं इल्म महदूद था, जब इल्म महदूद होता है तो ऑब्जेक्शन खुद ब खुद आ जाता है। अरे गम जो है असल में बंदा मोमन का बेऔलादी, गुर्बत या बीमारी नहीं है, उसका गम असली और जो है गफलत, मासियत और खुदा की नाराजगी, खुदा से दूरी है, इसको गम कहा है। तो जब अहलुल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं ये सारे गम दूर होते हैं या नहीं होते? अल्लाह की माफ़त भी मिलती है, अल्लाह राजी भी होता है। अब जनाब बंदा जिक्र करने वाला, नेक अमाल करने वाला भी होता है और अल्लाह की नाराजगी भी खत्म हो जाती है। अगर तू गुर्बत को और मुफलसी को अगर कहता है तो ये असली गम नहीं, असली गम खुदा की नाराजगी है। मेरे दोस्तों, तो जब इसको सामने रख के तो फिर कहें वही शेर चिश्ती साहब वाला पढ़े, मेरे दोस्तों, तो फिर सारी बात समझ में आ जाती है। अल्लाह अकबर। तरीक़त, अहले तरीक़त के लिए ये बात है। चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफॉर्म पे फ़कीर बैठा हुआ है, यकीनन अहले तरीक़त की कसरत होगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह, कि ए ईमान वालों दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। एक पासे लग यार और खुसरिया की तरह जो है ना बशकार ना रह जो है या खच्चर की तरह, ना घोड़ों में ना गधों में, बल्कि एक तरफ आ जा। तो मुनाफिक है या आशिक है? तो गुनाहगार है या नेकोकार है? तो सही बेईमान है या बेईमान है? तो फिर इसकी तो पहचान वाज़े है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना, ईमान वालों से खिताब है। फरमाया इन तत्तकुल्लाह, कि अगर तुम दायमी तकवा इख्तियार करो, हमेशा का तकवा, जैसा दिन को है मस्जिद में वैसा बाजार में भी हो, जैसा दिन को है वैसा जनाब रात को भी हो, जैसा अपने जनाब खलवत में है, जैसा जलवत में है ऐसा खलवत में भी हो। ये नहीं कि उत्तू मियाँ तस्बीह दे विचू मियाँ कसवी, नहीं, ये नहीं, अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं। उधर जनाब आली नेकियां करता चला जाए, उधर साथ साथ गुनाह भी करता चला जाए। मेरे नबी ने फरमाया वो ज़ाकिर हो ही नहीं सकता कि जो नेकियां भी करे साथ साथ गुनाह भी करता रहे। सरकार ने फरमाया कि एक शख्स जिसके पास, ये हदीस मुबारका है, एक शख्स जिसके पास
नमाजों के अंबार लगे हुए हैं, इबादतों के अंबार लगे हुए हैं, रोज़ों यानी फराइज के अलावा नफली रोज़ों के भी अंबार लगे हुए हैं, हज भी बहुत सारे किए हुए हैं, रोज़े भी बहुत रखता है, सहाबत भी बहुत करता है, लेकिन है वो नाफरमान रब का। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या नमाजी नाफरमान नहीं हो सकता? हो सकता है। जब वो पूरे हकूक और अदाब से नमाज बजा नहीं लाएगा तो वो गुनाहगार होगा, नाफरमान होगा। और अगर पूरे हकूक और अदाब के साथ एक नमाज अदा कर ले तो कुरान बोलता है, रब फरमाता है इन्न सलात तन्हा अनिल फहश वल मुनकर, नमाज जो है पूरे हकूक और अदाब से जब तू बजा लाए, बेशक एक ही ना तुझे वो बेहया रहने देगी, ना गुनाहगार रहने देगी, हयादार भी बना देगी, नेकोकार भी बना देगी। माशाअल्लाह उसमें 1000 मरतबा दुकान पे पहुंचते, 1000 मरतबा घर जाता है। अल्लाह अकबर। मियाँ मोहम्मद बख्श आज़े खड़ी मियाँ कश्मीर अपने भाई मियाँ बहावल बख्श के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, सगे भाई थे, वो मस्जिद के पेश इमाम थे। तो माँ से शिकायत की आके कि माँ ये मेरा भाई जो है ना वो जमाती कमेटी और नमाजी एतराज़ करते हैं कि तेरा भाई मौलवी साहब तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता, बात क्या है यार, बात तो बता। कहा जी बात तो कोई नहीं, इसको बोलो लगी हुई रोजी छूट जाएगी और नमाजी नाराज हो जाएंगे, कमेटी जो है वो ऑब्जेक्शन करेगी, फिर मुझे तलब कर लेगी। तो माँ ने कहा बेटा मोहम्मद बख्श भाई के पीछे नमाज पढ़ा करो। तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हुक्म सारा आंखों पे। कहा अम्मा हुजूर ठीक है। जब जनाब अली नमाज पे गए, मियाँ बहावल बख्श ने अल्लाह अकबर की बड़ा खुश हुआ, आज मेरा भाई भी पीछे कमेटी वालों का एतराज़ दूर हो जाएगा, नमाजियों का एतराज़ दूर हो जाएगा। और अल्लाह अकबर की जब रुकू में गया तो जनाब उठा और जनाब मियाँ मोहम्मद बख्श सलाम फेर के तो नमाज से ही निकल गए जो है। तो कहा नमाज जब पढ़ ली तो सारे नमाजियों ने देखा, कहा मियाँ बहावल बख्श तेरा भाई तो नमाजी तोड़ के चला गया, खैर तो है? अल्लाह अकबर। सोचने लगे और माँ से आगे घर में लड़े। माँ पहले कुछ पत बची थी, आज ये दौराने नमाज ही भाग के आ गया है और लोग मुझसे इसका जवाब तलब कर लिए, मैं क्या कहूँ? तो बेटे को तलब किया माँ ने, कहा माँ हुजूर क्या होगा? मैं फरमाया तू भाई के पीछे पहले तो नमाज नहीं पढ़ता था, आज नमाज के लिए गया है तो तू नमाज तोड़ के आ गया, इसके लिए मसाइल खड़े करके आ गया। बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा करता है? कहा माँ जब तक ये रब की नमाज पढ़ता रहा मैं तेरे हुक्म पे इसके पीछे खड़ा रहा, और जब ये जो है ना रब की नमाज से निकल गया, इससे पूछो जब ये रुकू में गया था और कादे में खड़ा हुआ, इसको ख्याल नहीं आया था कि मेरी घोड़ी जो है ना नई ब्याही है, बच्चा दिया बुछेरी, कहीं कुएं में ना गिर जाए? कहा कि ख्याल तो आया था। मियाँ बहावल बख्श माँ ने पूछा, कहा ख्याल आया? कहा ख्याल तो आया था। कहा फिर मैं घोड़ियों बुछेरियों की नमाज इसके पीछे नहीं पढ़ने जाऊंगा, अल्लाह की नमाज पढ़ाए तो मैं पढ़ता रहूंगा। पहले ही अपनी नमाज ठीक करे। अल्लाह अकबर। हमारी नमाजें ऐसी हैं इसलिए नमाजी बेहया भी है, गुनाहगार भी है। अगर सही अल्लाह की नमाज पढ़ ले तो नमाज की शान तो यह इन्न सलात तन्हा अनिल फहश वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से बचाती है। अल्लाह फरमाता है इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम दायमी तकवा इख्तियार कर लो, दायमी तकवा, तो फिर मैं रब क्या करूंगा? बंदा नवाजी देखो रब की, फरमाया यजअल लकुम फुरकाना, फिर मैं जो है तुम्हें एक कुव्वत और एक नूर ऐसा अता करूंगा कि जिसकी मदद से तुम कभी गलती नहीं खाओगे, गलत को गलत समझोगे और सही को सही समझोगे, कोई तुम्हें धोखा ना दे सकेगा। जैसे आजकल मुसलमानों को धोखा दिया है, दफ्तर में बैठे हैं 5 नमाजें पढ़ के, दाढ़ी शरीफ रख के, टोपी पहन के, अमामा पहन के, और जनाब अली रिश्वत भी ले रहा है। कहा हजरत ये क्या कर रहे हैं? कहा ये रिश्वत नहीं है, ये तो मिठाई है।
یہ تو مٹھائی ہے، یہ تو خرچی ہے، یہ رشوت تھوڑی ہے، وہ تو لینے دینے والے جہنمی ہیں، پر میں رشوت تھوڑی دے رہا ہوں، میں تو مٹھائی دے رہا ہوں۔ اس کا کام کیا، ارے تو عوام کا خادم ہے، تجھے تنخواہ اس لیے ملتی ہے عوام کی خدمت کرنے کی، اس کا کام تو نے کرنا ہے۔ اپلیکیشن قبول کرنی ہے، ویریفائی کر کے آفیسر کے پاس بھیجنی ہے، بھیجنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ مٹھائی کہے کی ہے، یہی تو رشوت ہے۔ میرے دوستو یہ دائمی تقویٰ نہیں ہے، اتو میاں تصویر وچو میاں کسوی۔ اللہ اکبر، فرمایا جب تم تقویٰ دائمی اختیار کر لو، گناہ چھوڑ دو، وہ حدیث مبارکہ ادھوری رہ گئی، مجھے یاد آ گئی، اس کو مکمل کر دوں۔ حضور نے فرمایا کہ نمازوں کے انبار اور روزوں کے انبار، نفلوں کے انبار، لیکن ہو نافرمان، فرمایا گویا کہ اس نے اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں، گویا کہ اس نے اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بندے کے پاس صرف تھوڑے مختصر فرائض واجبات ہیں، روزے بھی فرضی ہیں، صرف نفلی روزے کوئی نہیں، حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ بیچارے نے کیا ہے، زکوٰۃ بھی بڑی مشکل سے مختصر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ہے وہ اللہ کا تابع دار فرما بردار، تو سرکار نے فرمایا اس نے گویا کہ ذکر کیا ہے، وہ ذاکر ہے، نافرمان ذاکر کہلانے کا حقدار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے۔ اگر ذکر کرنے والا جناب علی اچھا اوپر لا الہ الا اللہ 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 کرتا رہے عبداللہ بن ابی کی طرح، اور میرے دوستو دائمی تقوی اختیار نہ کرے، حدود کو پامال کرتا رہے اور حد شریعت کی توڑتا رہے، تعلیمات مصطفی کو پامال کرتا رہے، گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ نافرمان ہے، گویا کہ اس نے ذکر کیا ہی نہیں، وہ غافل کا غافل ہے، وہ غافل کا غافل ہے۔ فرمایا کہ پھر بندہ نوازی رب کریم کی دیکھو، فرمایا پھر یجعل لکم فرقانا، کہ میں تمہیں فرقان کا نور عطا فرماؤں گا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہوگا، کوئی مائی کا لال تمہیں دھوکہ نہ دے سکے گا۔ اسی لیے میرا تیرا نبی یہ اہل طریقت کا سبب ہے۔ یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج اہل طریقت کے لیے جو آج کسی بزرگ سے منسوب مربوط نہیں ہے، نسبت میں نہیں آئے، اللہ ان کو بھی پاک نسبتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو نبی کریم رؤوف الرحیم اسی لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، دعا کیا کرتے تھے، دیکھنا مجھے ہے، دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھ پہ حق کو حق ظاہر فرمانا اور باطل کو باطل ظاہر فرمانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق کو باطل سمجھ کے چھوڑ دوں اور باطل کو حق سمجھ کے کرنا شروع کر دوں۔ یا اللہ حق کو حق، باطل کو باطل مجھ پہ ظاہر کرنا، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور وہ کس برکت سے تجھے ملے گی؟ ان تتقوا اللہ، جب دائمی تقوی اختیار کرے گا میرا رب وہ فرقان تجھے عطا فرما دے گا، فرق کرنے والا صحیح اور غلط میں۔ حضور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان میں اس کو فراست فرمایا اور قال فرمایا حدیث مبارکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کے نور فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، نور خاص جو تیرے دل میں تیرے سینے میں اللہ کریم نے تقوی بیس پہ وہ فراست کا نور ڈالا ہے، اب جو ہے اس نور سے وہ دیکھتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور ربیعہ، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلامی کی ہزاروں میل دور جنگ قادسیہ میں قیادت کر رہے ہوں۔ میرے دوستو جمعہ کا دن ہو، آج بھی جمعہ کا دن ہے، اور دوران خطبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، تو لوگ صحابہ یار مصطفیٰ، یاران مصطفیٰ کہے کہ خطبے میں اضافہ ہو گیا، ربیعہ کا نام بھی آ گیا اس کے اندر، ہاں نہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں کہ پوچھے امیر المومنین کو، خاموش رہے، کہا ربیعہ آئے گا اس سے پوچھیں گے کہ بات کیا ہے،
राज वहां से खुलेगा। क्यों कि खुतबे में रबिया का नाम लिया है और पहाड़ का नाम लिया है। या सारियतल जबल, या सारियतल जबल। हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला हो इस्लामी लश्कर की सियादत क़यादत करते हुए फतह हासिल करके काफिरों को खाक धूल चटा के जब आए तो सहाबा इकट्ठे हो गए। कहा ऐ सारिया जंग का कोई अहम वाक़या सुना। कहा शुरू में जब मुकाबला हुआ तो हम जंग जीत गए, लेकिन पहाड़ के पीछे से चालाक दुश्मन घुड़सवारों का लश्कर लेके हमारी पीठ के पीछे से हमला कर रहा था कि मैंने अचानक जो है खुतबे का टाइम था, इतने बज के इतने मिनट का टाइम था कि मैंने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज में ये सुना, या सारियतल जबल, ऐ सारिया जरा जबल की तरफ पहाड़ की तरफ ख्याल कर। मैंने मुड़ के जब देखा तो सर पर जनाब घुड़ सवार दस्ता एक आ रहा है, नंगी तलवारें। करीब था अगर न देखता तो वो हमारे सर कलम कर देता, फतह शिकस्त में बदल जाती। लेकिन मैंने फारूक आजम की आवाज को यहाँ सुना। मैं सदके जाऊं उस जबान पे जो हजारों मील दूर आवाज पहुंचाने वाली, उस कान पे भी सदके जाऊं जिसने हजारों मील दूर से आवाज को समाप्त कर लिया। मेरे दोस्तों, कहा सारिया ने कि फिर इतना टाइम था, मैंने अपने लश्कर को जनाब तरतीब दिया। जब आए तो उनको हमने तहस नहस कर दिया, उनको काट दिया, कत्ल कर दिया, वासले जहन्नम कर दिया और फतह मुसलमानों की फतह रही। ये वाकया अहम है, वरना हम जो है आज शहीद होते, गाजी ना होते। मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं फरासत। रास्ते में पहाड़ हैं, रास्ते में जंगल है, समंदर है, रास्ते में सहरा है, लेकिन हजारों मील दूर मेरे दोस्तों हजरत उमर फारूक की नजर जो देख रही है, आम आदमी की नजर नहीं देख रही। बात क्या है? हुजूर का फरमान के मुस्तकिल तकवा, दायमी तकवा बेच पे अल्लाह फुरकान अता फरमाता है। फरमाया मोमिन की फरासत नूर से डरो कि वो अल्लाह के नूरे खास से देखता है, दिलों के अंदर भी वो झांक लेता है। इसीलिए सरकार ने फरमाया कि या अल्लाह जो है दिलों के जासूस। हज़रत शाह तवक्कुल अंबारवी रहमतुल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलाम है, गुलाम है रसूल में मौत भी कबूल है जो होला इश्क़ मुस्तफा तो जिंदगी फजूल। जी मेरे दोस्तों, हजरत शाह तवक्कुल अंबारवी रहमतुल्लाह तआला आपकी एक मुरीदनी थी, कोई 24 साल पुरानी। ये वाक़या मैं अक्सर बयान करता हूँ, मुझे बड़ा लुत्फ़ आता है और इस आयत की तर्जुमानी करता है, फरकान की और फरासत की। तो जब जवान थी, मुरीद हुई, शादी हो गई और जनाब आगे औलाद हो गई, बच्चे पोते भी हो गए, नवासे भी हो गए, तो बुढ़ापे में चरखा चला रही हैं, सूत काट रही हैं कि शैतान आ गया बच्चे के रूप में। बच्चा और बूढ़ा हम जिनस होते हैं, वो भी मोहताज और नातमा होता है, कमज़ोर होता है बूढ़ा शख्स, ऐसा ही है ना जी? हाँ, और बच्चा भी नातमा और मोहताज होता है। माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं और बूढ़े माँ बाप की लायक औलाद जो नेक होती है वो खिदमत बजा लाती है। नालायक ने क्या करना है, नालायक ने माँ बाप की क्या खिदमत करनी है। अल्लाह के माँ बाप के बारे में फरमाया कि उफ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। फरमाया कि माँ बाप जब एक या दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो उनकी आवाज़ से आवाज़ ऊंची नहीं करनी और उनके सामने उफ भी नहीं करनी और रहमत और मोहब्बत बड़े जज्बे के साथ उनकी खिदमत में लगे रहना। ये मेरे रब का हुक्म है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए औलादें क्या कर रही हैं। जब तक वो बरसरे रोज़गार होते हैं, जवान होते हैं, तो दस्ते नगर होती है औलाद, तो जनाब यानी चुप रहती है।
हुक्म मानती रहती है कुछ ना कुछ, और जब बूढ़े हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं, नौकरी ख़त्म, कारोबार ख़त्म, बच्चों को मुंतकिल हो गया, मोहताज हो गए, बूढ़े हो गए, तवालत बीमारी की तवालत की वजह से चिड़चिड़ापन आ गया, चारपाई पे पड़ गए, और फिर अल्लाह अकबर, फिर वो दस्ते नगर की औलाद होती, माँ बाप दस्ते नगर हो जाते हैं, फिर वो उनको बोझ लगते हैं। खुशकिस्मत हैं जो उस वक़्त करीमाना बोलते हैं, अब्बा हुजूर दवाई खा लीजिए। बास तो कहते हैं ऐसी रोटी खाई है या तेरिया दवाइयां बाबिया लैके आ गई है। एक तो तू जो है ना 500 दियां दवाइयां रोज खाना है, उनकी किथों ले आके दे देता है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला नेक और फरमाबरदार औलादों को बनाए। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि उम्र में बरकत हो और रिज़्क में बरकत हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। उम्र में भी बरकत डालेगा अल्लाह, सेहत भी बीमारियों से महफूज रखे, नुकसानात से महफूज, और रिज़्क भी वाफर अता फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, तो बात ये कर रहे थे शाह तवक्कल अंबानी रहमतुल्लाह अलैह की मुरीदनी चरखा चला रही है और वो वजीफा भी पढ़ रही है जो पीर व मुर्शिद ने बताया होगा। 50% क्या 90% मुरीद वजीफा ही नहीं पढ़ते, पीर का दिया हुआ, कहते हैं फैज़ नहीं मिलता। अरे खुदा दिया बंदिया, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई खाएगा तो फायदा होगा ना। पीर ने जो रहनुमाई फरमाई है उस पर अमल करेगा तो फैज़ पहुंचेगा ना। अल्लाह अकबर। तो बच्चे ने आके खेलना शुरू कर दिया, हसीन व जमील, हम जिनस है, बूढ़े को बच्चे से प्यार, बच्चे को बूढ़े से प्यार। बाप के पास कम जाता है, दादा के पास, नाना के पास, नानी और दादी के पास बच्चे नवासे पोते ज्यादा जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, आके तो खेलना शुरू कर दिया शैतान ने बच्चे के, हसीन व जमील बच्चे के रूम में, और कहने लगा अम्मा क्या कर रही हो? कहा बेटा चरखा चला रही और सूद काट रही है। कहा सिर्फ चरखा तो नहीं चला रही ना, सूद काट रही है, तेरे होंठ भी हिल रहे हैं, और क्या कर रही है? कहा मैं पीर व मुर्शिद का बताया हुआ वजीफा पढ़ रही हूँ। कहा कितना अरसा हो गया? कहा 24 साल हो गए हैं। अच्छा 24 साल हो गए हैं। तो चरखा भी चलाई जा रही है, देखा ही नहीं है बच्चे को, आवाज आ रही है, मुकालमात हो रही है। तो बच्चे ने कहा था तो शैतान, कहा अम्मा 24 साल जो पीर का वजीफा पढ़ा है, इससे मिला कुछ मिला भी है या नहीं? माई ने चरखे को रोक दिया, सूद को काटना छोड़ दिया, नजर भर के देखा बच्चे को और कहा और बच्चे तू कहीं शैतान तो नहीं? अल्लाह अकबर। तो शैतान तो था बच्चे के रूम में। बच्चे ने कहा कि हाँ अम्मा हो तो शैतान, पर कमाल है तूने पहचान कैसे लिया? कहा तू भी बेवकूफ है, एक नंबर का। अगर बेवकूफ ना होता तो रब का हुक्म मान के आदम को सजदा कर लेता, वो असल में अल्लाह के हुक्म को सजदा था। लेकिन तू रज के बेवकूफ है। वही तूने सवाल किया, उसके अंदर जवाब भी पोशीदा है, फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? सवाल तूने ये किया कि अम्मा तुझे मिला क्या, तो फिर पूछता है तुझे पता कैसे चला? अरे 24 साल जो मैंने वजीफा पढ़ा, उस वजीफे की बरकत से अल्लाह ने मुझे नूरे ख्वाब फिरासत व फुरकान का नूर दिया, मेरा दिल रोशन हो गया। अब तेरे जैसा शैतान बच्चे के रूम में या किसी रूम में भी आ जाए, मैं फौरन पहचान जाती, पहचान जाती। और ये किस बेस पे है ये बताना, बुनियादी नुक्ता क्या है? दायमी तकवा। दायमी तकवा, ये नहीं कि सुबह हो तो शाम हो, और ये दायमी तकवा नहीं। बेशक तो PhD कर ले या बैरिस्टर बन जा या चीफ जस्टिस बन जा, ये कुछ भी होने वाला नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों मोहतरम, फिर हज़रत शाह तवक्कल अंबानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आप चूँकि बहुत ही कम बोला करते थे, और आप ही का ये वाक़या है। कौन? शाह तवक्कल अंबानी के मुरीद आया, या हज़रत आज मैं जुमे पे गया तो मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि 500 ऊंचे गज, 500 गज ऊंचे
बाग में दरख्त होंगे जन्नतियों के बागात में। तो या हजरत ये तो अल्लाह की मर्जी है भाई, फल ना ही खाएं। वो 500 गज जाएगा, 500 उतरेगा, थक जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा, क्यों कोई दरख्त पे चढ़ेगा और फल तोड़ेगा जाके। फरमाया नहीं, आप कुएं पे तशरीफ फरमा थे और बैठे हुए थे और बैल चल रहे थे। फरमाया मुरीदा, जो जन्नती है उसको तख्त से उठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने शहतूत का दरख्त था मेरे दोस्तों, कुएं के पास शहतूत का दरख्त था। आपने फरमाया कि जन्नती ऐसे इशारा करेगा, दरख्त झुकेगा और जनाब यारी वो फल तोड़ेगा और उसके दरख्त पे दूसरा फल रब उसके सामने लगाएगा, ताकि हसरत ये पैदा ना हो कि मेरे बाग के अंदर फलां दरख्त पे एक फल कम हो गया है, वो फल भी लगा देगा। मेरे दोस्तों, जैसे शाह तवक्कल अंबानी रहमतुल्लाह तआला ने इशारा किया और शहतूत का दरख्त झुक गया, शहतूत तोड़ा और शहतूत का दरख्त वापस अपनी जगह पे खड़ा हो गया। फरमाया जन्नती ऐसे पकड़ेंगे, फल तोड़ेंगे और दरख्त फिर अपनी जगह खड़ा हो जाएगा। करके दिखा दिया। उनके पास उलमा इकट्ठे हो गए थे, ये मलंग है, इसके पास इतना इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर, मैंने तो ज्यादा इल्म वाले इमाम गजाली बू अली फरेमदी के दरबार में झाड़ू देते देखे हैं। अल्लाह अकबर, मौलाना रूम शम्स तबरेजी के जूते उठा के पीछे पीछे चल रहे हैं। इल्म में तो मौलाना रूम का सानी कोई नहीं था, लेकिन इल्म की दो किस्में, एक इल्म ज़ाहिरी शरई और एक इल्म बातनी। अरे मियाँ, बातनी उलूम से जो है फरासत के दरवाजे यानी मार्फत के दरवाजे खुलते हैं। कहा मार्फत का जिक्र तो रब ने कुरान में किया, लेकिन किरामात का जिक्र तो कुरान में किया, लेकिन मैंने नमाजें बहुत पढ़ी, हज बहुत किया, रोजे बहुत रखे, मेरे अंदर तो करामत नहीं आई। अल्लाह ताला ने शम्स तबरेजी को भेज दिया, जा तो जाके तो मौलाना रूम बड़ी पग बांध के सबक दे रहे थे। फरमाया मौलाना चाइस कहा ही देखा हुलिया देखा, ऐसे मलंग जा आ गया बेचारा, अनपढ़ जा, इल्म पे नाज था ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इल्म नाफी उस वक्त होता है जब किसी करीम का हाथ उसके ऊपर आ जाता है, करीम का हाथ आ जाता है और फिर वो उसकी तरबियत करता है, फिर वो इल्म नुकसानदेह नहीं, इल्म नाफी बन जाता है। मेरे दोस्तों, तो कहा ही जायज देखा हुलिया, कहा मौला अमिया और दरवेश जा अपना काम कर, ई कालस तू नवे दानी, और ये किलो काल है, किताबें हैं, हदीस है, मंतक है, फलसफा है, इल्म बयान है, ये तेरे बस की बात नहीं है, जाओ अपना काम करो। अच्छा ठीक है, फिर पढ़ाने में लग गए। दरवेश ने किताबें उठा के तालाब में फेंक दी, पकड़ लो। कलमी नुस्खे होते थे, हजारों मील दूर से लोग इल्म हासिल करने आते थे। कहा कि जो है इल्म तो ज़ाया हो गया, तालाब में स्याही घुल जाएगी, आप जो है इल्म कहाँ से हासिल करेंगे। इसीलिए हुजूर ने फरमाया इल्म हासिल करो, बेशक चीन जाना पड़े, यानी बड़ी दूर था अरब से चीन। मेरे दोस्तों, समंदर था बीच में, बड़ा मुश्किल सफर था। अल्लाह अकबर। तो जब किताबें बीच में पकड़ ली, कहा इसको भागने ना देना। कहा दरवेश ऐसा क्यों किया। कहा भाई अगर किया तो मैं किताबें आपको निकाल देता हूँ। कहा खाक निकालेगा, स्याही घुल गई होगी, इल्म ज़ाया हो गया होगा, किताबें गीली हो गई, पेज सड़ गए होंगे, अब तू क्या निकालेगा। कहा नहीं, वैसे की वैसे निकाल दूंगा, कोई स्याही नहीं घुलेगी। कहा अच्छा, चारों तरफ घेरा मार दिया, शागिर्दों को कहा हो सकता है चालाकी हो, भागने ना देना। कहा कि ठीक है निकालू। अंदर गया तालाब में दरवेश और जाके डुबकी लगा के किताबें निकाल दी, उनको आपस में झाड़ा तो अंदर से धूल और मिट्टी उड़ना शुरू हुआ। फिर इज्जत के साथ बिठाया, कहा दरवेश ई चाइस ये क्या है। कहा कि ई हालस तू नवेदानी, वो काल था हम नहीं जानते, ये हाल है तू नहीं जानता। कहा मैं यही जानना चाहता हूँ कि वो जो करामात का जिक्र है वो मेरे अंदर नहीं, तूने जनाब गीली किताबों को निकाल के मिट्टी उड़ा दी अंदर से। ये इल्म बातनी, उलूम बातनी। मेरे दोस्तों, बात ये कर रहे थे कि उलमा इकट्ठे हो गए ना, तो शब्द बकर बालवी के पास गए
80 मन आटा लगता था आपके दरबार में। कितने मन थी? 80 मन। इतना लंगर चलता था। और जिस वक्त जिक्र करते थे तो जनाब यानी ऐसे यानी दीवाने हो जाते, पहले बोलते ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो उलमा ने जाके तो कहा ये ऐसे ये अनपढ़ सा जाहिल सा है, ये इसने इतनी महलूक इकट्ठी कर ली है, 80 मन आटा लगता है इसके दरबार में, चले तो सही है क्या भला, क्या चीज क्या है? अल्लाह टटोलने के लिए आप कहा कि हजरत हम जो है सही और ज़ईफ हदीसों में कुछ हमें अबहाम है तो उसकी तस्हीह करवाना चाहते हैं, आप अल्लाह वाले हैं तो तस्हीह कर दीजिए। आपने फरमाया हाँ हाँ पढ़ो जो है, आप समझ गए। आपने बुर्का पहन लिया, चेहरा छुपा लिया और लोग तो आंखें खोल के देखते हैं, लेकिन जनाब ये आंखें बंद करके सब कुछ देख लेते हैं। अल्लाह उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह मेरे दोस्तों बुर्का ऊपर डाल लिया, एक जनाब यानी बनावटी हदीस अपनी तरह, तो ग्रामर के तो बड़े माहिर थे ना, इसको कौन सी अरबी आती है मलाक को, जनाब यानी एक फर्जी हदीस बना के पेश कर दी। कहा मौलाना खबरदार ये मेरे नबी का फरमान नहीं है। 2 हदीसें सही पढ़ दी। हाँ सुभान अल्लाह ये मेरे नबी का फरमान है, ये मेरे नबी का फरमान है। दूसरा पढ़ा, कहा ये भी मेरे नबी का फरमान है, मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, ये मेरे नबी का फरमान है। फिर 3 जो है ना मसनूई हदीसें बना के, ग्रामर के तो बड़े एक्सपर्ट थे, वो बयान कर दी। कहा ना ये इल्जाम है, ये मेरे नबी का फरमान नहीं। दूसरा ये भी मेरे नबी का फरमान नहीं। तीसरा ये भी मेरे नबी का फरमान नहीं। लाजवाब हो गए उलमा। कहा कि हजरत बस हाथ बांध लिए तो लाडू बैठ गए। हजरत आपको पता कैसे चलता है? कहा कि ये वो जो है फरमान और फरासत रब ने अता की दायमी तकवा बेस पे उलूमे बातिनिया की मदद से, जिस वक्त तुम हदीस पढ़ते हो मेरे नबी का फरमान होता है तो तुम्हारे चेहरे से मैं नूर देखता हूँ, मुंह से नूर निकलता है, मैं पहचान लेता हूँ मेरे नबी का फरमान है। और जब तुम जो है झूठ बोलते हो नबी के ऊपर, कोई हदीस सरकार की होती नहीं तो तुम्हारा चेहरा काला भी होता है और तुम्हारे मुंह से नूर नहीं निकलता, मैं पहचान लेता हूँ ये मेरे नबी का फरमान है। नहीं, ये अता कब होती है? जब दायमी तकवा इख्तियार कर। और दायमी तकवा मेरे दोस्तों मिलता है जब अहलुल्लाह के पास जाते हैं तो फिर अल्लाह करीम जो है तकवे पे एक बहार लाता है, और फिर वही कुछ जो जंगल में बैठ के दरवेश के सीने में है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने में रिफ्लेक्ट हो जाता है और जो है वो भी साहिब नजर हो जाता है। अल्लाह करीम हमें सुने सुनाए पे अहले तरीक़त का, चूँकि ये सबक है, चैप्टर है और उनकी रहनुमाई भी होनी चाहिए। अल्लाह ताला सुने सुनाए पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम दोस्त खड़े होकर हुज़ूर की बारगाह में सलाम पेश